Hello students, hope you are alright. In previous classes we discussed about plant tissues and few types of animal tissues. In this chapter, we are having two major things to discuss, that is plant tissues and animal tissues. So in this particular video we are going to discuss about other types of tissues that are remaining, and this will include muscular tissues and its type, then nervous tissues, and then we will see how nervous tissues are very much unique for our body and what makes them unique, and we will see in detail about muscular tissues and its function. So let's start with the muscular tissues. Origin, that it originates from mesoderm of the embryo. And what is the special property of this muscular tissues, why they are very much important in our body? That contractibility is the special property. What is contractibility? They are able to contract, they are able to expand or relax. So that's why our body is having a special ability, that is stretching ability. If muscular tissues will not be there in our body, then we can't stretch our body. There will be no flexibility at all in our body. So that's why muscular tissues are playing very important role. So muscular tissues consist of elongated cells, also called muscle fibers, and this tissue is responsible for movement in our body. The main function of muscular tissues is to provide movement. And why they are able to provide movement? Because they are having contractile protein, and because of these proteins they are having property of contractibility, and because of that contractibility they are able to move, they are able to bend, or they are able to contract and relax, and that contraction and relaxation in muscles causes movement in our body. So we will see what are the types of muscular tissues and why they are having various types, and what are the differences between these types. The first major type is striated muscle or skeletal muscle or voluntary muscle. We will see why three names are given to that. Then second one is smooth muscle or involuntary muscle, and third one is cardiac muscle. This is again example of involuntary, but cardiac muscles are very unique. So we'll see striated muscles or skeletal muscle or voluntary muscle. So these muscles are also called skeletal muscle, as why they are mostly attached to the bone and help in body movement. क्यों कहते हैं इसे स्केलेटल मसल? क्योंकि ये स्केलेटन मीन्स आवर बोन्स which gives a shape to our body, special shape to our body and protects our organ, vital organs. So ये उनसे जुड़ी होती हैं, किससे? बोन से जुड़ी होती हैं ये मसल्स, और जिसकी वजह से इन्हें हम स्केलेटल मसल कहते हैं. स्ट्रिएटेड मसल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर आर स्ट्रिएशंस. स्ट्रिएशन आपको दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे स्ट्रिएशन दिख रहे हैं, और दीज स्ट्रिएशंस जो आपको ये लाइनिंग दिख रही है, ये लाइनिंग, ये जिसमें आपको दिखाया गया है, ये लाइनिंग, ये स्ट्रिएशन है. तो इसकी वजह से इनको हम स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं. कैसी होती हैं ये? सिलेंड्रिकल होती हैं और अनब्रांच होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएट. यू कैन सी these are the nucleus present, so they are मल्टी न्यूक्लिएटेड. तो बहुत सारे न्यूक्लियस इस पे होते हैं. सो दैट्स वाई दिस इज हैविंग थ्री नेम्स. वाई? वन इज स्ट्रिएटेड, सेकेंड वन इज स्केलेटल, एंड थर्ड वन इज वॉलंटरी मसल. वॉलंटरी का मतलब जब आप चाहें इनसे अपना काम करवा सकते हैं, जब आप चाहें आप अपने हाथ को फैला सकते हैं, जब आप चाहें अपनी मुट्ठी को आप बंद कर सकते हैं, और जब आप चाहें अपने हाथ को
अपने पास ला सकते हैं, जब आप चाहें कोई चीज़ कैच कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रिएशंस, बिकॉज ऑफ दीज वॉलंटरी एक्शन ऑफ द मसल। जैसा आप चाहेंगे उस हिसाब से आपके ये मसल्स वर्क करते हैं, दैट्स वाई दीज मसल्स आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं हम, स्मूथ मसल और इनवॉलंटरी मसल्स। पहले में आपने देखा दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, दे आर हैविंग स्ट्रिएशंस, सो दैट्स वाई स्ट्रिएटेड मसल। यहाँ आप देखेंगे स्मूथ मसल, वाई स्मूथ मसल, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग स्ट्रिएशन, सो दे आर फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, इन यूरेटस एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। सेल की क्वालिटी क्या होती है? दे आर लॉन्ग, स्पिंडल शेप्ड एंड पॉजेज अ सिंगल न्यूक्लियस। प्रीवियस में आपने देखा मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएट है, सिंगल न्यूक्लियस पाया जा रहा है। पहले वाले में देखा स्केलेटल मसल में आपको स्ट्रिएशंस दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे कोई स्ट्रिएशन नहीं है। पहले ही बताया गया था कि मसल फाइबर्स बोला जाता है क्योंकि दे आर लॉन्ग, तो इसलिए इसमें भी आपको ये लंबे दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिएशंस आपको नहीं दिखाई दे रहा है। पहला वाला जो था वो वॉलंटरी मसल था, ये इनवॉलंटरी है, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन इट। थिंक अबाउट दैट। जैसे कि आप यूरेटस को, यूरेटस कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं भाई? आपकी किडनी जो है वो यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होता है, वहाँ पे ब्लड आपका फिल्टर होता है। आप किडनी के फंक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते, आप अपने लंग्स के फंक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते कि नहीं आपको अब ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं करना है ब्लड में, आप अपने लंग्स को मना नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई दे आर नॉट एक्टिंग विथ आवर सेंस, हमारे अपने सेंस पे वो काम नहीं कर रहे हैं, वो फ्री हैं, हमारे सेंस से वो फ्री हैं, इसलिए वो इनवॉलंटरी हैं, उन पे हमारे, उनके एक्शन पे हमारा कोई रोक नहीं है। डाइजेशन फूड का होता रहता है एंड वी आर नॉट एबल टू स्टॉप दैट। हम अपने ग्लैंड से नहीं कर सकते कि नाउ यू हैव टू सिक्रीट, नाउ यू हैव टू स्टॉप सिक्रेशन, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये चलता रहता है। तो जिसकी वजह से आप इन्हें इनवॉलंटरी मसल कहते हैं। स्मूथ मसल क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पे कोई स्ट्रिएशंस नहीं पाए जाते हैं, ये स्मूथली, और ये सिंगल न्यूक्लिएट है। ठीक है, तो ये हो गया स्मूथ मसल और इनवॉलंटरी मसल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स थर्ड टाइप ऑफ मसल, दैट इज कार्डियक मसल और इनवॉलंटरी मसल। ये कार्डियक मसल ये बहुत ही स्पेशल मसल्स होती हैं, और ये क्या करती हैं? दे हेल्प्स इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, एंड दे आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। आपने देखा जो स्मूथ मसल थी वो ब्रांच नहीं थी, वो सिंगल थी, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रांचिंग दिख रही है, यहाँ पे आपको ब्रांचिंग दिख रही है। इट्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आप ब्रांचिंग देख पा रहे हैं, ब्रांचिंग आप देख पा रहे हैं। तो हियर यू कैन सी, और ये इनका जो आपको शेप दिख रहा है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप आपको दिख रहा है। और इनका फंक्शन जैसा कि लिखा हुआ है, आपने देखा कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यू कैन फील दैट योर हार्ट इज pumping blood in a coordinated manner and it in a particular interval of time, regular interval of time. That's why it is rhythmic contraction and relaxation. जो डप लप की आवाज़ आती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं होता कि एक बार 2 मिनट में काम कर रहा है, एक बार 10 सेकंड में काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो भी है वो एक पर्टिकुलर वे में काम करता है। दैट्स वाई कार्डियक मसल्स आर यूनिक। जैसे ही हमारी बॉडी में जान आता है, जैसे ही हम ब्रीथिंग करना, मतलब जैसे ही पंपिंग की बात करते हैं, तब से ये जो हमारा हार्ट है वो काम करना शुरू करता है। और जब तक हम जिंदा रहते हैं बिना रुके बिना थके, ये हार्ट हमारे लिए वर्क करता है। और इससे हम सीख सकते हैं कि आदमी बिना रिलैक्स किए हुए या बहुत कम रिलैक्स किए हुए बहुत अच्छे से हाई परफॉर्मेंस के साथ अपने लाइफ में काम कर सकता है। ये हमारा हार्ट हमें सिखाता है। अगर हार्ट अपना रेस्ट करने लगे तो फिर हमारी लाइफ का कोई भी वजूद नहीं बचेगा, हम नहीं बचेंगे। सो दिस कार्डियक मसल्स, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फंक्शन,
दे आर वेरी यूनिक एंड दे आर इनवॉलंटरी। अपने हार्ट बीट को हम स्टॉप नहीं कर सकते, दैट्स वाई दे आर इनवॉलंटरी। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स नर्वस टिश्यूज। तो 4 टिश्यूज के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था, एपिथेलियल टिश्यूज, देन वी सा कनेक्टिव टिश्यूज, देन मस्कुलर टिश्यूज, नाउ वी आर गोइंग टू सी नर्वस टिश्यूज। अब ये नर्वस टिश्यूज क्या हैं, वी विल सी इन डिटेल। तो cells of nervous tissues are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. Brain, spinal cord and nerves are all composed of nervous tissues. आपने देखा एक सबसे यूनिक चीज़ है very rapidly, इतना फास्ट काम करते हैं ये कि जैसे ही आपके पैर में कोई कांटा चुभता है या कोई नुकीली चीज़ चुभती है, तुरंत आप अपना पैर हटा लेते हैं। सोचिए, पैर में चुभी हुई चीज़ तुरंत सिग्नल दिया ब्रेन को, और ब्रेन ने तुरंत पैर को सिग्नल दिया कि जस्ट रिमूव योर लेग फ्रॉम देयर, आप वहाँ से अपना पैर हटा लीजिए। आप तुरंत रिएक्ट करते हैं और तुरंत पैर हटा लेते हैं। सोचिए कि कितना फास्ट फंक्शन है। जैसे ही कोई नुकीली चीज़ हमारे आँख के पास आती है या कभी भी हमें ये लगता है कि झटका लगने वाला है आँख पे, हम तुरंत हमारी आँखें बंद हो जाती हैं। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ फास्ट रिएक्शन, वेरी रैपिड रिएक्शंस, एंड दैट इज़ वेरी फास्ट, यू कैन से दैट sending and receiving of stimulus to our body and again to brain and then to that particular organ. So this makes our nervous tissues very unique. और क्या क्या है, brain, spinal cord and nerves are composed of nervous tissues. तो neurons के बारे में बात करते हैं. What is neurons? A neuron is a nerve cell with all its branches. Neuron formed from neuroblast. तो it is structural and functional unit of nervous system. सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है. द सेल ऑफ नर्वस टिश्यूज आर कॉल्ड न्यूरॉन, आप ऐसे बोल सकते हैं. अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, एन एक्सॉन एंड अ डेंड्राइट. वी विल सी इन डिटेल. तो आप जान लीजिए कि न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, और इसके स्ट्रक्चर में 2 मेजर पार्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड साइटॉन एंड सेकेंड वन इज द नर्व प्रोसेसेस. सो विल सी व्हाट इज साइटॉन. साइटॉन इज आल्सो कॉल्ड द सेल बॉडी और सोमा एंड इट्स शेप इज वेरिएबल. इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ये अपने डिमांड के अनुसार और कहाँ ये स्थित है उसके अनुसार इसका शेप चेंज हो सकता है. और दूसरी चीज़ आप देखेंगे नर्वस प्रोसेस. सो दीज आर द प्रोजेक्शन. क्या हैं ये? प्रोजेक्शंस हैं. कहाँ से? सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन. सेल बॉडी के से जो निकले होते हैं न्यूरॉन्स के, वो होते हैं नर्व प्रोसेस. द नर्व प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड न्यूराइट्स. इनको न्यूराइट्स भी कहते हैं. एंड नर्व प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स. तो डेंड्राइट्स और एक्सॉन ये नर्व प्रोसेस हैं. कहाँ से निकले होते हैं? सेल बॉडी से निकले होते हैं. किसके सेल बॉडी से? न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से. जो भी चीज़ें निकली होती हैं वो नर्व प्रोसेस कहलाती हैं, और ये 2 फॉर्म में होती हैं, या तो एक्सॉन हो या तो डेंड्राइट्स हो. तो हम देखेंगे व्हाट इज डेंड्राइट्स. सो डेंड्राइट्स में भी 1 or several एंड इट इज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. डेंड्राइट्स एक हो सकती हैं या ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, एंड ये ब्रांच स्ट्रक्चर होती हैं. एंड एक्सॉन इट इज सिंगल लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल प्रोसेस whose main function is to conduct the nerve impulse away from the cyton. So axon is efferent in nature, दूर लेके जाने वाला है. Okay, so this is the property of axon and it is the longest nerve process of neurons. तो एक्सॉन सबसे डेंड्राइट्स जो होती हैं छोटी छोटी होती हैं, वो ब्रांच्ड होती हैं. एक्सॉन जो होता है अनब्रांच्ड होता है और ये लंबा होता है, ये बड़ा होता है. अब बाय द स्ट्रक्चर वी कैन सी दैट द मेजर पोर्शन दैट इज सेल बॉडी, इट कंस्टिट्यूट अ न्यूक्लियस, इट इज द फाउंड इन मिडिल. देन वहाँ से आप देखा कि इसमें से डेंड्राइट्स निकले होते हैं जो कि ब्रांच्ड हैं, जो कि आपको एकदम साफ सुथरे दिख रहे हैं. अभी आपने देखा
कि जो डेंड्राइट्स होते हैं वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हैं। एक्सॉन जो है काफ़ी लंबा है और ये अनब्रांच्ड है। यहाँ पे आपने देखा एक्सॉन अनब्रांच्ड है, लंबा है, और ये कहाँ, इसको सारी चीज़ों को यहाँ बॉडी से दूर लेके जा रहा है, ठीक है, इस तरफ। और डेंड्राइट्स आपको बहुत सारे ब्रांचिंग में इधर उधर आपको दिख रही हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो इन दैट वे वी डिस्कस्ड अबाउट नर्वस टिश्यूज। और आपने देखा कि व्हाट मेक्स द न्यूरॉन्स वेरी स्पेसिफिक। इसने आपने देखा कि ये जो मैसेज कन्वे करता है वो बहुत ही फास्ट करता है, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में करता है और बहुत ही यूनिक तरीके से करता है। एंड क्यों ऐसा कर पाता है? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ इट्स कोऑर्डिनेशन दैट मेक्स इट्स अ यूनिक स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी। अब हम देखेंगे कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स आपके वो होने चाहिए जिसमें सारे डायग्राम मौजूद हों। विदाउट डायग्राम देयर इज नो बेनिफिट ऑफ रीडिंग लाइफ साइंस। ओके, एंड नाउ देन यू हैव टू राइट द हाउ यू कैन डिफरेंशिएट कार्डियक टिश्यूज फ्रॉम अदर इनवॉलंटरी टिश्यूज। ये भी इनवॉलंटरी होता है, लेकिन दूसरे वालों से कैसे आप अलग कर सकते हैं, एंड व्हाट मेक्स न्यूरॉन यूनिक। सो दिस इज ऑल अबाउट। नाउ this is the resource where I have collected the things, and thank you, all the best.